Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to understand the important articles that were in today's The Hindu newspaper, that is 3rd of August 2021. आज 3rd अगस्त 2021 के हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनको हम डिकोड करने जा रहे हैं वन बाय वन एंड देयर आर लॉट ऑफ गुड आर्टिकल्स इन टुडेज न्यूज़पेपर सो डू नॉट मिस दिस लेक्चर. Watch it till the very end and make sure that you also make your own notes while watching this lecture. इस lecture को देखते वक्त side by side simultaneously side by side आप अपने notes बनाते रहिएगा, ठीक है? That will help you to memorize it faster and revise it afterwards at a very good pace. Now the class PDF will also be uploaded on the Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. You can download it from there. Class का lecture का जो PDF होगा वो भी Telegram channel पे upload हो जाएगा, which is Simplifying UPSC with Ease. तो वहां से आप लेक्चर के पीडीएफ को नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो ताकि कोई अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप नोट्स को मिस ना करो. इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और इफ यू हैव मिस्ड आउट मेकिंग ऑन सम नोट्स यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड देम फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल. ओके, लेट अस गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज ऑन पेज नंबर 1. Supreme Court question states on cases under 66A. What is 66A? It's a section. ये जो 66A है ये IT एक्ट का सेक्शन 66A है. ओके, सो द सुप्रीम, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अ फ्यू इयर्स अगो दिस पर्टिकुलर एक्ट वाज स्क्रैप्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. कुछ साल पहले इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया था. स्क्रैप मतलब हटा दिया था. बट अभी उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया गया है. वही सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भाई जिस एक्ट को हमने स्क्रैप कर दिया, द एक्ट विच वाज स्क्रैप्ड बाय अस, विच वाज रिमूव्ड बाय अस, व्हाई आवर डिसीजन हैज नॉट बीन इंप्लीमेंटेड, व्हाई स्टिल दिस एक्ट इज बीइंग यूज्ड. So Supreme Court asked the states to respond to a petition that stated citizens continue to get booked and prosecuted under Section 66A of the Information Technology Act for expressing themselves freely on social media. Now this Act 66A was declared as unconstitutional. ये एक draconian act माना जाता था. इसको unconstitutional declare किया था and that too it was declared by the Supreme Court in 2015. 2015 में इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया था एंड स्टिल इन द श्रेया सिंघल केस. But right now this act is still being used. That means that decision of Supreme Court has not been implemented properly by the states. अगर आज भी ये एक्ट यूज हो रहा है प्रोसिक्यूट करने के लिए, लोगों को जेल भेजने के लिए, इसका मतलब अभी तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. Citizens are still being booked under it. That was filed in the petition and Supreme Court is asking the states now why you are violating our decisions. So here ये पॉइंट्स आपको याद रखते हैं. That Section 66A is of the IT Act which was scrapped 7 years ago. Still it is used to prosecute. Now there are currently 745 cases booked under Section 66A in 11 states. And it allows the arrest of several innocent persons. Basically it is said that Section 66A arbitrarily, excessively and disproportionately invades right of free speech under the Article 19 subsection 1 clause A. कहा जाता है कि ये जो एक्ट है ना फ्री स्पीच को इन्वेट करता है, वायोलेट करता है कि आप अपने आप को फ्रीली सोशल मीडिया पे ओपन अप नहीं कर सकते खुद को, क्योंकि अगर जरा सा भी कुछ आप अपना ओपिनियन या कुछ क्रिटिसिज्म रखोगे तो आपको 66A के तहत बुक कर लिया जाएगा. सो सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्ड इट बिकॉज इट वाज बीइंग यूज्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनली. इसको आर्बिट्रेरीली, एक्सेसिवली और डिसप्रोपोर्शनली यूज किया जा रहा था लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को खंडित करने के लिए. Okay, now the Section 66A, you have to study about this act, the implementation, the exception and why was it struck down. This act defines punishment for sending offensive messages through a computer or any other communication device. Communication device can be a tablet also, mobile phones also. And if convicted, the person can be given a maximum jail punishment of 3 years and a fine also. So basically this act upsets the balance between the rights and reasonable restrictions. It's considered as a draconian act. That is why it was struck down. Next important article
Now here no agreement yet on Gogra hot springs. This is again on page number 1. अब इसमें ये कहा गया है कि अभी तक गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं आया, नहीं हुआ है. चाइना और इंडिया के बीच में 12th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर मीटिंग हुई है, बट उसमें अभी गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स पे जो उन्होंने अपने सेनानियों को तैनात किया है चाइना ने, उस पर अभी कोई एग्रीमेंट नहीं आया है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड गोगरा एंड हॉट स्प्रिंग्स इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ हिंदू डिकोडेड, बट अगेन आई एम रिपीटिंग दैट चाइना हैज रिफ्यूज्ड टू वेकेट 2 of the 4 original friction points between India and China. Now there are different points of friction between India and China on the LAC, line of actual control. We have friction points in the patrolling point 14 in the Galwan Valley, then the north bank of Pangong Tso. Now this is patrolling point 15 which is in Hot Springs and patrolling point 17A near the Gogra post. Right now the Chinese soldiers are standing over here, and there is currently no agreement that has been reached by India and China on how to solve this matter. These patrolling points are close to Chang Chenmo river. गलवान में ना एक रिवर है चैंग चेनमो रिवर, ठीक है. ये गलवान के सब सेक्टर LAC जो ईस्टर्न लद्दाख में हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसमें जो सब सेक्टर है गलवान का, वहां पर चांग चेनमो रिवर है और ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स वहीं पर मौजूद हैं. नाउ हॉट स्प्रिंग्स इज द पेट्रोलिंग पॉइंट at the north of Chang Chenmo river and Gogra post is at the east of the point where the river takes a hairpin bend. Okay, इस तरीके का जो बेंड होता है, इस तरीके का बेंड ये चैंग चेनमो रिवर यहाँ पर गोगरा पोस्ट के पास लेती है. ओके, सो पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो होते हैं ना, इसको एक इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान 1976 में चाइना स्टडी ग्रुप तैयार किया गया था, जो कि चाइना के से रिलेटेड जो भी डिसीजंस है, कि चाइना से रिलेटेड, चाइना के इंगेजमेंट से रिलेटेड, अग्रीमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे, वो ये टॉप मोस्ट एपेक्स बॉडी लेगी, चाइना स्टडी ग्रुप. इट वाज फॉर्म ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन 1976. So these patrolling areas are also decided by the China study group. Okay, remember that. So both these hot springs and Gogra posts, they are very crucial right now. Why? Because both of these patrolling points are close to the boundary between the two most historically disturbed provinces of China. Okay, the bone of contention is regarding the control of the territories near these patrolling points between India and China. Now when we understand about LAC, see, between India and Pakistan we have LOC, the boundary, the border, and between India and China we have LAC. LOC is line of control, LAC is line of actual control. So it is divided into 3 sectors. Eastern sector आता है जो अरुणाचल प्रदेश को कवर करता है, सिक्किम को कवर करता है. मिडल सेक्टर आता है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को कवर करता है, और वेस्टर्न सेक्टर कवर करता है लद्दाख को. सो वी हैव ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर एंड मिडिल सेक्टर. ईस्टर्न सेक्टर इज कवरिंग अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, वेस्टर्न सेक्टर इज कवरिंग लद्दाख, मिडिल सेक्टर इज कवरिंग उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश. रिमेंबर दिस इज अबाउट द LAC बिटवीन इंडिया चाइना. नाउ जब हम बात करते हैं ईस्टर्न सेक्टर की, हियर द LAC इज नोन एज मैकमोहन लाइन विच वाज डिसाइडेड इन 1914 ड्यूरिंग द colonial India. This McMahon line, it was marked out during the colonial India, during the British rule. So it has undefined borders between Britain and Tibet also. And the middle sector, ये least disputed है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला जो एरिया है ना, ये least disputed है. Yes, but still there are certain small disputes or small transgressions which you can find between India and China. The next important article, Indian rock python rescued from sports club. ये आपको आर्टिकल मिलेगा पेज 3 पर. This is important for prelims 3. Indian python is also known as Indian rock python, black-tailed python and Asian rock python. It is also known as, the scientific name is Python molurus. It's a large but it's non-venomous. ये पॉइंट आपको याद रखना है. It's a non-venomous, जहरीला नहीं है ये पाइथन, एंड इट इज नेटिव टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, और अंडर द IUCN रेड लिस्ट ये नियर थ्रेटेंड में आता है. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ऑफर्स मीडिएशन इन कृष्णा रिवर डिस्प्यूट. नाउ हियर इन द कृष्णा रिवर डिस्प्यूट व्हिच पार्टीज आर इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स है ये आपके, ठीक है, स्टेट वाइज डिस्प्यूट्स है. कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है? तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश आर इन्वॉल्व. Now both of them, they share the water of Krishna and Godavari river, and they also own their tributaries. Now here for prelims you have to remember about Krishna river. Krishna river originates near Mahabaleshwar, सतारा के पास जो महाराष्ट्र में है, वहां पर ये रिवर ओरिजिनेट करती है, और ये पेनिनसुलर इंडिया में ना सेकंड बिगेस्ट रिवर है गोदावरी रिवर के बाद. And it runs from 4 states. It covers Maharashtra, North Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh.
and it finally drains into the Bay of Bengal. That you have to remember. Okay? बाकी ये जो dispute है ये काफी साल पुराना है, इसके ऊपर हम एक separate lecture बनाएंगे. We will create a separate lecture on this dispute. Okay? PM Modi launches digital payment solution e-rupee. This is again important for your preliminary examination. ये आपका prelims examination के लिए बहुत important है. अनअकैडमी लाया है mentorship week. 29 जुलाई से 4 अगस्त अनअकैडमी पर चलेगा एक मेंटोरशिप वीक, जिसके तहत अगर आप अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 साल या उससे ऊपर का, आइकॉनिक जीएस और ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलेगा 27,500 का ऑप्शनल बैच सिर्फ 2,000 रुपए में. आपको मिलेंगे प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल टेस्ट सीरीज जो कि 45,000 की है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको मिलेंगे आइकॉनिक जीएस ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ऑफ द सेम डिवीजन वर्थ ₹27,500 एंड आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच जो आपको आपके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक की जर्नी में गाइड करेगा. वो आपको इंडिविजुअल अटेंशन देगा. आप टाइम टेबल से रिलेटेड डाउट हो आपका, या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो, या कोई भी डाउट हो, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डाउट हो, हर डाउट को क्लियर करेगा आपका खुद का पर्सनल कोच. आपके जो बैचेस आपको मिलेंगे उसकी एक्सेसिबिलिटी रहेगी जब तक आप मेंस का उस ईयर का अटेम्प्ट नहीं दे देते. मान लीजिए आपने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो जब तक आपका 2023 का मेंस नहीं हो जाता एक्सेसिबल रहेंगी क्लासेस. मान लीजिए आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो जब तक आपका 2021 का मेंस नहीं हो जाता, ये बैचेस आपके 2022 का बैच आपका मेंस नहीं हो जाता, ये बैचेस आपके एक्सेसिबल रहेंगे. और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी प्लस पर, तो क्या होगा, आपको हम देंगे CSE अश्योर. CSE अश्योर क्या है? CSE अश्योर में ऑफर है कि अगर आप अपना 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो और एग्जाम देने के बाद आप रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हो, तो अनअकैडमी आपको 1 साल का एक्सटेंडेड फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करेगा, ताकि दूसरी बार आप पूरे जतन से, पूरे जान से, एजुकेटर से, सही एजुकेटर से, टॉप एजुकेटर से गाइडेंस लेकर, टेस्ट सीरीज देकर अपने अटेम्प्ट को क्रैक कर सके. इस सब के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हो अर्पिता10. तो लिंक्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं. याद रखिएगा ये मेंटरशिप वीक ऑफर सिर्फ 4 अगस्त यानी कि आज तक ही वैलिड रहेगा. मेंटरशिप वीक ऑफर के अंदर आने के लिए आपको आइकॉनिक का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, 1 साल या उससे ज्यादा का. आइकॉनिक जीएसएन ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन पर ही ये वैलिड रहेगा. तो देर किस बात की, लिंक्स दिए हैं वीडियो के नीचे, आज ही सब्सक्राइब कीजिए, कोड यूज कीजिए अर्पिता10 और पाइए 10% डिस्काउंट. जब हम बात करते हैं ई रूपी की, ये क्या है? एक कैशलेस. ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक. तो ऑब्वियसली जो फिजिकल मनी है वो यूज नहीं होगा. कैशलेस कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट्स होंगे, ठीक है, जो एंड दे विल बी डिलीवर्ड टू मोबाइल फोन्स ऑफ द बेनिफिशियरीज इन फॉर्म ऑफ SMS स्ट्रिंग और अ QR कोड. इसको NPCI ने डेवलप किया है. NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है ऑलरेडी, आई गेस 2017 या 18 में. ओके, सो NPCI ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है इसे. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं वो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ई रूपी को डेवलप किया है. Now it has been developed by National Payments Corporation of India, Department of Financial Services, Ministry of Health and Family Welfare and National Health Authority. ये एक पर्पस स्पेसिफिक पेमेंट सिस्टम है, यानी कि ये एक्ट करेगा एक प्रीपेड गिफ्ट वाउचर की तरह, जिसको आप किसी भी टाइम पर रिडीम कर सकते हो किसी भी एक्सेप्टिंग सेंटर पर. ठीक है, डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है, मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग की भी जरूरत नहीं है. ई रूपी जो है वो स्पॉन्सर्स जो सर्विस दे रहे हैं आपको, उनको कनेक्ट करेगा बेनिफिशियरी से, यानी कि आपसे, सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करेगा एक डिजिटल मैनर में. फिजिकल इंटरफेस की जरूरत नहीं है. गवर्नमेंट के मुताबिक ई रूपी जो है वो NPCI के UPI सिस्टम के ऊपर बनाया गया है, तो ये लीक प्रूफ डिलीवरी देगा सर्विसेज की. ओके, सो दिस वाज योर ई रूपी विच इज अ कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट मीडियम. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, amid protest, Lok Sabha passes bill to amend Insurance Act. General Insurance Business Nationalization Amendment Bill 2021 has been passed now. This bill was introduced in Lok Sabha and there were so many criticisms and protests in the House, but still this act was passed. The amendment was passed. So here, this particular amendment gives the power or the way to the government to divest its stake in general insurance firms. ऑपोजिशन मेंबर्स ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया था कि भाई इस एक्ट को वापस लो, बट गवर्नमेंट ने इस एक्ट को वापस नहीं लिया. तो बेसिकली प्रपोजल्स क्या है इस एक्ट में, इस अमेंडमेंट में? देखो, इस नए बिल में हुआ क्या है कि जो आपका जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 था ना, उसको अमेंड किया गया है.
उसमें क्या अमेंडमेंट की है? टू रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर सेंटर टू होल्ड एटलीस्ट 51% ऑफ इक्विटी इन एन इंश्योरर। एक इंश्योरर में 51% इक्विटी जो थी वो गवर्नमेंट की हुआ करती थी, उसको रिमूव किया है इस प्रोविजन को कि जरूरी नहीं है। Another provision ensures that 1972 Act stops applying to insurers from the date center ceases to have control over them. जब से सेंटर अपनी इक्विटी डाइवर्स्ट कर लेगा, वापस ले लेगा, तो तब से इंश्योरर्स जो हैं 1972 एक्ट के जो प्रोविजंस है उस इंश्योरर पे अप्लाई नहीं होंगे। The bill also makes a director who is not a whole-time director liable only, underline this point, only for acts of omission or commission. अगर इंश्योरर की नॉलेज के साथ, उसकी कन्वीनियंस और उसके साथ आप बोल सकते हो कॉन्निवेंस के से मिलकर उसकी सहमति से अगर डायरेक्टर जो है, जो होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, कोई ओमिशन या कमीशन करता है तो उस जिम्मेदारी उसकी होगी सिर्फ उस ओमिशन और उस कमीशन की। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। और अगर जो उसने किया है वो इंश्योरर की नॉलेज में है। क्रिटिसिज्म्स क्या थे इस एक्ट के? तो क्रिटिसिज्म ये थे कि जब गवर्नमेंट, इसमें लिखा हुआ है कि 51% स्टेक जो है सेंटर वापस ले लेगी, डाइवर्स्ट कर लेगी, इसका मतलब आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का। अभी तक जनरल इंश्योरेंस का मतलब क्या था? आप ये सोच के सेफ रहते थे कि भाई गवर्नमेंट का स्टेक है इसमें, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड है। बट अब जब गवर्नमेंट ही अपना स्टेक वापस ले लेगी तो प्राइवेटाइजेशन होगा। तो क्रिटिसिज्म यही था पहला कि टोटल प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी जनरल इंश्योरेंस की, जिससे गवर्नमेंट जो है उनके भी पैसे जाएंगे क्योंकि उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, वो अपना डाइवेस्ट कर रहे हैं स्टेक को, ठीक है, प्लस इंश्योरर की प्रोटेक्शन भी जाएगी। ओके, एंड चैलेंजेस क्या होंगे इंश्योरेंस सेक्टर में? वैसे ये जनरल चैलेंजेस है इंश्योरेंस सेक्टर में, दैट लो पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी रेट्स। हर इंश्योरेंस सेक्टर का जो पेनिट्रेशन रेट है या डेंसिटी रेट है, कितने लोग कवर्ड हैं, वो बहुत कम है। इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, आजकल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है। डोमिनेंट पोजीशन एंड डेटीरियोरेटिंग फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स. So these are the challenges currently the insurance sector is facing, and with government divesting its stake, critics are saying that it will make insurance sector all the more vulnerable. Next important article, Supreme Court judgment has held that preventive detention could be used only to prevent public disorder. Preventive detention, this topic has been a very important topic in the M. Lakshmikant book also. एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे, उसमें आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है, व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, एंड इट इज इन द चैप्टर सुप्रीम कोर्ट ओनली। ओके, सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में ही है। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जो स्टेट के पास पावर है ना कि किसी भी इंसान को आप हाउस अरेस्ट पर डाल दो, रिस्ट्रेन कर दो कि किसी ट्रायल के बिना, इस बेसिस पे कि उसके प्रेजेंस से या उसकी वजह से किसी तरीके का डिसऑर्डर जनता में या फिर सोसाइटी में हो सकता है। डिसऑर्डर मतलब जो इंटरनल सिक्योरिटी है एक पर्टिकुलर जगह की, या फिर क्योस हो सकता है, या लोगों को उत्तेजित कर सकता है ये इंसान। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके की जो पावर है प्रिवेंटिव डिटेंशन की, ये नेसेसरी इविल है ओनली टू प्रिवेंट पब्लिक डिसऑर्डर। इट्स अ नेसेसरी इविल, बट इट इज नेसेसरी ओनली टू स्टॉप द पब्लिक डिसऑर्डर। माना कि ये इविल है कि आप किसी को घर में कैद करके रख रहे हो एक सस्पिशन के बिना पर भी, बट ये पब्लिक डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी भी है। And that the court must ensure that facts brought before it directly and inevitably lead to harm, danger or alarm or feeling of insecurity. यानी कि आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस आता है तो मेक श्योर जो भी आप फैक्ट्स प्रस्तुत करो उससे प्रूव होना चाहिए कि इस इंसान की वजह से या इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जनता को कोई हार्म पहुंच सकता है, खतरा हो सकता है, या इनसिक्योरिटी की फीलिंग पब्लिक के बीच में आ सकती है। It said that the state should not arbitrarily resort to preventive detention. Now here Supreme Court की power आ रही है to limit the powers of the government from arbitrarily using any act. कभी कभी क्या होता है, बहुत केसेस ऐसे आते हैं कि कभी कभी गवर्नमेंट आर्बिट्रेरली अपने मोटिव को पूरा करने के लिए कुछ लोग लॉज को ट्विस्ट करते हैं, एक्ट्स को ट्विस्ट करते हैं और यूज करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट यही चाहती है कि इस तरीके के एक्ट का गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए हम इस तरीके की जजमेंट पास कर रहे हैं। Justice Sullivan said preventive detention must fall within the four corners of Article 21. That is due process of law. Read with Article 22, safeguards against arbitrary arrest and detention, and the statute in question, the law or the act in question. What is due process of law? We have already discussed in the Supreme Court judgments. जो हमने अलग से बैच तैयार किया था Supreme Court judgments का, उसमें हमने पढ़ा है ये कैसी मान्यता है, ऐसा प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन है जो कि ये चेक करता है कि लॉ जो है it checks if there is a law
कि ऐसा कोई लॉ है जो पर्सनल लिबर्टी एक इंसान से छीन रहा है, राइट टू लाइफ उस इंसान से छीन रहा है। इस तरीके के लॉज को डिटेक्ट किया जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत, इस प्रिंसिपल के तहत, और कोशिश की जाती है लॉ को ज्यादा से ज्यादा फेयर और जस्ट बनाया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक्सपर्ट्स वॉर्न अगेंस्ट मैंडेटरी फूड फोर्टिफिकेशन। जीएस पेपर 3 के लिए ये इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो जीएस पेपर 2। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। व्हाट इज फूड फोर्टिफिकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूज इज कि एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि फूड फोर्टिफिकेशन का इंसान के जीवन शैली पर और उसके हेल्थ पर बहुत नेगेटिव घातक इंपैक्ट पड़ सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग फूड फोर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें जानबूझकर एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी को ना इंक्रीज किया जाता है जबरदस्ती, ताकि न्यूट्रिशनल क्वालिटी एक खाने की बढ़ाई जा सके, ठीक है, ताकि लोगों को मिनिमल रिस्क पर उनको हेल्थ बेनिफिट दिया जाए। तो इसमें क्या किया जाता है? सिंथेटिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं, नेचुरल नहीं, सिंथेटिक, इस पर्पज से कि लोगों के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाया जाए, उनको एक अच्छी लाइफ दी जाए। बट जब आप किसी नेचुरल चीज को आर्टिफिशियली डालते हो, बढ़ाते हो, तो उससे इंसान के साथ गलत ही होता है, अच्छा होने के बजाय। तो सेंटर ने प्लान किया है कि हम मैंडेटरीली फोर्टिफाई करेंगे राइस को, ठीक है, एडिबल ऑयल्स को विटामिन से और मिनरल से। बट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर आप सिंथेटिक आर्टिफिशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालोगे तो कंज्यूमर की हेल्थ को और ज्यादा खतरा है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? अगर आपको लोगों की अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है भारत में, तो इसके बजाय हाई प्रोटीन कंजम्पशन, हाई प्रोटीन डाइट दो, डाइटरी डाइवर्सिटी बढ़ाओ। जरूरी नहीं है कि सिर्फ चावल और एडिबल ऑयल से आप प्रोवाइड करो, डाइवर्सिफाई करो डाइट को एक इंसान के, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जबरदस्ती किसी में माइक्रोन्यूट्रिएंट बढ़ाने के बजाय आप डाइवर्सिफाई करो डाइट को, आप देखो कौन हाई प्रोटीन डाइट कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए, और सिंथेटिक माइक्रोन्यूट्रिएंट से बचने की कोशिश करो, क्योंकि आप जो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो वो और इंसान का बुरा कर सकता है। 15 states have been identified for implementing this, food fortification scheme in rice. So this was all for today. I hope you enjoyed this lecture. अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो do not forget to watch this video till the very end and do not forget to take your notes down. अपने notes जरूर बना लीजिएगा. On this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in this 22 minutes lecture. Have a good day.